Okay, potential divider circuits, man. In the first place, I'm gonna make a circuit for you guys. And then let's say that we have a circuit over here. Just give me a second. Okay. And this needs to be. Just give me a second. आज क्या हम पढ़ रहे हैं? जी बेटे, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बेटे दोबारा पूछे। मैं कह रहा हूँ आज हमने क्या पढ़ना है? बेटे ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो तो रहा है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये एक्चुअली में थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, अभी हम फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं। बेटे आज हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स। और आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, आई होप। यस सर। ओके, potential divider circuit. Now, what is a potential divider circuit? To understand this, for you, I'm making a circuit over here. अच्छा बेटे, यहाँ पर what I'm making a resistor at this point. We have a resistor. This is a fixed resistor. Then at this point, we have a wire. Between these 2 points, I'm calling these 2 points as XY. ये हमारे पास XY है, ठीक है।
और इसमें हमारे पास एक वायर कनेक्टेड है जो मैं यहाँ पर आपके पास शो कर रहा हूँ. This is a resistance wire. Then we have a voltmeter over here. इस point पे I'm connecting a voltmeter. So एक के voltmeter ammeter sorry, ये एक ammeter है जो कि मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर switches लगे हुए हैं. So ये हमारे पास switch है. And we have a power source over here. This and this point. Okay. Now, this part, which I have marked with an arrow on it, इसको हम नाम देते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का. So मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क करके दे रहा हूँ that this is called sliding contact. तो ये हमारे पास है sliding contact. This over here we have a resistant wire. This is the resistance wire. It has a specific resistance. This is a fixed resistor. This is a power source and switch. All that. Now, what is a sliding contact? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि sliding contact किसे बोला जाता है. Now, we have studied resistivity, and we have studied the relationship between resistance and length. If you remember, आप लोगों ने ये relationship study किया है, जो कि length को relate करता है. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्विच लगा है. अगर तो मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इसी पॉइंट पर रखता हूं जहां पे मैंने अभी इसे रखा हुआ है, तो हमारे पास करंट कैसे फ्लो करेगा उसको देखते हैं. This is the direction of the flow of current in that case. From the positive point, it goes like this. ठीक है. उसके बाद यहां से आएगा इस पॉइंट पे. Then it goes to this point. This is the. Then it goes to this point. Through the length of wire, through whole length of wire, from this point, from this, इधर से हमारे पास रहेगा और इधर आ जाए. Now, this is the flow of current जब हम मान रहे थे कि हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट X पर प्लेस्ड है. अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर. लेट्स से कि मैंने यहाँ पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस पॉइंट पे रखने की बजाय इधर से इस जगह पे रख दिया. स्लाइडिंग अब जब मैं इस पॉइंट पे रखूंगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, तो हमारे पास करंट की जो फ्लोज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होने लग जाएंगी. अब वो कैसे होगी? यहां से करंट जो है इस पॉइंट पे आएगा. Now I have considered that I have placed the sliding contact at this point. अब हमारे पास करंट कैसे फ्लो करता हुआ आएगा? अब करंट की फ्लो कुछ ऐसे होगी कि वो इस पॉइंट से फ्लो करेगा. Then it goes to this point. फिर हमारे पास ये फ्लो आगे कंटिन्यू हो. And let's say that I have kept this current over here. मैंने यहां से इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करके इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट मैंने इसे Y पे प्लेस कर दिया. ठीक है. अब थिंग इज कि करंट ने ये रूट तो हर हालत में लेना ही लेना है, जो आपको ये वाला रूट शो किया जा रहा है. That this is the route which the current is for sure going to opt for, क्योंकि there is no other way around. So this route is for sure. The only route which can be varied, it depends on the length of this
wire XY and the sliding contact that we are going to place. For example, if I'm going to place the sliding contact at this point, अगर मैं sliding contact को इस point पे रख देता हूँ, तो मुझे बताएं अब current का route क्या होना चाहिए हमारे पास? Now the route of the current should be like this. हमारे पास इस केस में जो route है current का, that is something like this. It means that none of the current or none of the length of the wire is occupied or through which current is flowing. अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को S पे रखता तो हमारे पास पूरी लेंथ में से बाहर के करंट फ्लो करता. अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को Y पे रखता हूं तो फिर कोई लेंथ ऐसी कवर नहीं होगी जिससे कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऐसी जगह पे रख दिया मैंने Y पे, is now no current can flow through any length of the wire. अगर लेंथ ऑफ द वायर इस वक्त मैं कह देता हूं कि 0 हो गई है, क्योंकि करंट वायर पे रखने से वायर की कोई लेंथ कवर ही नहीं कर रहा, उसके रास्ते में करंट है ही नहीं, ये लेंथ ऑफ वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि वायर का कोई रेजिस्टेंस भी सर्किट में ऑफर नहीं हो रहा. तो अब मैं यहां पे वापस बना रहा हूं. मुझे पहले बताएं कि हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट? बेटे आप लोगों को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी आपसे बात की है? यस सर. गाइस बोल दें. सर रिपीट कर दें. वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. नहीं सर, सर, repeat नहीं. गाइस कैन यू हियर मी? सर रिपीट कर दें. सर नहीं समझ आया. बच्चों नहीं समझ आया. जी Harun, can you tell me, have you understood what I was saying? सर एक दफा रिपीट कर दें जरा, थोड़ी सही Harun? यस सर. Whether my Sir, mic is working, there is no problem. Abdul Rafi, are you here बेटे? जी सर. सर आप रिपीट कर देंगे? Sir, can you hear us? सर को आवाज नहीं आ रही. कोई सुन सकता है मुझे या फिर है? और इस वायर को if we look at this, तो जब हम X पे रखेंगे तो हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है X पे रखने से कोई वायर की लेंथ कवर नहीं करेगा. अब पूरी लेंथ कवर करेगा तो करंट हैज टू फ्लो थ्रू द होल वायर, और अगर हम वायर पे रखते हैं so current is not going to flow through this at all. अब यहाँ पे मैंने दो resistors रखे हुए हैं, just assuming this part, this is 100 ohm resistance. मेरे पास ये वाला जो resistance है ये एक 100 ohm resistance है. This part, ठीक है. और दूसरी तरफ मेरे पास वायर है and I'm considering that its length, if we take the complete length of the wire, मैंने अगर यहाँ पर पूरी लेंथ यूज की है वायर की, तो keeping the contact at X, the resistance is going to be 200 ohms, and contact at Y, resistance is going to be 0 ohms. And I'm considering that the length of this wire is the length of the wire जो हमने यहाँ पे आप किया है, it is L. So that means यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं वायर कंसिडर करूंगा, so it means कि हम बात कर रहे हैं that the length is L. So इसकी जो लेंथ है वो इस वक्त L है. ठीक है. That means कि अगर हमने इसकी कंप्लीट लेंथ को कवर किया तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो 200 ओम होगा, और अगर हमने इसकी पार्शियल लेंथ को कवर किया तो हमारे पास जो इसका रेजिस्टेंस है इट कैन डिक्रीज, एंड व्हेन वी हैव प्लेस्ड द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एट Y, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 0. आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है.
Yes, sir. थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आपके पास यहाँ पर इस पे जो बैटरी पे वोल्टेज लिखा हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं दैट दे आर 24 वोल्ट्स। अब इस पॉइंट पर, इस जगह पर मैं इसके अक्रॉस कनेक्ट कर रहा हूं एक रेजिस्टर अक्रॉस दिस। तो यहां पर आप अज्यूम कर लें कि आई एम कनेक्टिंग अ रेजिस्टर, सॉरी वोल्टमीटर इस पॉइंट पर। और ये वोल्टमीटर जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये इसके अक्रॉस जो रेजिस्टर है, फिक्स रेजिस्टर, इसके अक्रॉस के मुझे वोल्टेज का बता रहा है। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं दैट द वोल्टेज अक्रॉस दिस आर लेट्स से 10 वोल्ट्स और 8 वोल्ट्स कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट्स आ रहे हैं। मुझे बताएं वेयर आई शुड प्लेस द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ L ऑफ द वायर। अब मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, वेयर द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट शुड बी केप्ट, वेयर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। जी अकील बेटे बताएं। सर ये मुझे समझ नहीं आ रही सर। बेटे शुरू से बता देता हूं, देयर वाज जस्ट अ प्रॉब्लम, तो वो भी ठीक कर लेते हैं। शुरू से बता रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा बेटे देखो, अच्छा बेटे आप सुनो। बेटे हमारे पास लगा हुआ एक सर्किट, शुरू से बिल्कुल बता रहा हूं, ठीक है। इस सर्किट के अंदर हमारे पास एक पावर सप्लाई लगा हुआ है डीसी, जो कि 24 वोल्ट्स का है। अगर हम इस पावर सप्लाई के रेफरेंस से देखें तो हमारे पास ये वाली साइड जो है, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो करंट जो है वो पॉजिटिव साइड से चलेगा और वहां से चलता हुआ ये पूरा ये रूट अप्लाई करेगा और इस रूट से चलता हुआ जाएगा। ठीक है बेटे, आर यू लिसनिंग टू मी? जी सर। यहां पर हमने जो येलो कलर का प्लेस किया है XY, ये एक ऐसा वायर है जिसके ऊपर हम कॉन्टैक्ट को, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एट डिफरेंट पॉइंट्स रख सकते हैं। मैंने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब है एक ऐसा कॉन्टैक्ट जो कि मूवेबल हो। बेसिकली what sliding contact means that I'm talking about a movable contact. मूवेबल कि मैं इस कॉन्टैक्ट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकता हूं। आप समझ लें कि ये क्लिप्स हैं, क्रोकोडाइल क्लिप्स देखे हुए ना आपने, सुना तो होगा ही ना नाम, कुछ भी ना हो तो। ये क्रोकोडाइल, मैं इन क्रोकोडाइल क्लिप को चाहूं तो इस पॉइंट पे लगा दूं, मैं चाहूं तो उतार के इधर लगा दूं, मैं चाहूं इस पॉइंट पे इधर या इधर कहीं भी कनेक्ट कर सकता। अब ये मैंने डिफरेंट पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं कि जहां पे मैं क्रोकोडाइल क्लिप्स कनेक्ट कर सकता हूं। सो दैट मींस कि ये मूवेबल कॉन्टैक्ट हो गया, हम इसे एक पॉइंट से डिस्कनेक्ट करके दूसरे पॉइंट पे लगा सकते हैं। अगर तो मैंने इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को X पे कनेक्ट किया हुआ है तो फिर क्या होगा, हमारे पास करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि करंट के पास कोई और रूट ही नहीं है, यहां पर जाएगा, उसके बाद यहां से पूरी वायर की लेंथ कवर करेगा और फिर उधर से ही आगे को निकलेगा। क्लियर है ये बात?
इसका मतलब है कि करंट के रास्ते में इस वायर की कंप्लीट लेंथ आ रही है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि करंट हमारे पास वायर को हमने इस जगह रखने की बजाय अब मैंने वायर को इस पॉइंट पे रख दिया, यानी कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव कर दिया एंड आई हैव केप्ट द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ओवर हियर। अब मुझे बताओ कि करंट किस पाथ से निकलेगा। करंट इस पाथ से ऐसे जाएगा, इधर से इस तरफ को मूव करेगा और फिर ही आगे को जाएगा। इसका मतलब है कि अगर अब मैं आपसे पूछूं कि वायर की कितनी लेंथ एक्चुअली में कवर हुई है, तो आप कहोगे करंट सिर्फ इतनी लेंथ से गुजरा है, जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क की। बाकी किसी पार्ट से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। दैट मींस कि लेंथ ऑफ वायर चेंज हो गई है जिससे करंट ने फ्लो करना था। अगर लेंथ ऑफ वायर चेंज हो गई है जिसमें से करंट ने फ्लो करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? इसका मतलब ये बन जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर बदल गया है। इट मींस दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैज चेंज्ड। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर बदल गया है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल आल्सो चेंज। एक और पॉइंट पे अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ये जो वायर है ये इस पॉइंट पे कनेक्ट हुई हुई है, the wire is connected at this point, इधर से कनेक्ट होने की बजाय ये वायर हमारे पास इस पॉइंट पे आ जाती है। अगर ये वायर इस पॉइंट पे आ जाती तो आप करंट कैसे फ्लो करता? अब करंट की फ्लो ये बन जाती है हमारे पास कि करंट डायरेक्टली इधर जाता है और वायर की वो कोई लेंथ कवर नहीं करता, यानी वायर की वजह से उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा और वो उसके बाद इधर से आगे निकल जाता। इज इट क्लियर? दैट मींस अगर मैं इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को मूव करना शुरू कर दूं along the length L of the wire, I can vary the resistance of the wire through which current is flowing. Placing the contact at X, it means that I'm covering the whole length of the wire and I'm getting the maximum resistance, which is equivalent to 200 ohm. I'm covering zero length of the wire by placing it at Y. I'm getting 0 ohm resistance because of wire, because I'm not covering any length at all. So that means कि X पे रखने से हमें maximum resistance मिलेगा, Y पे रखने से हमें minimum resistance मिलेगा, और in between अगर हम कहीं पर भी move करते रहेंगे तो as per the length of the wire, I'm getting the resistance of the wire. अब the question says कि आपके पास इस सर्किट में 24 वोल्ट्स का सप्लाई है। The length of the wire is given as L, और आपने मुझे बस एक मिनट बेटे, मैं आपका क्वेश्चन सुनने लगा हूं कि क्या है। अब्दुल्ला एंड मोहम्मद साद, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब क्वेश्चन ये कहता है कि दूसरी तरफ एक फिक्स्ड रेजिस्टर कनेक्टेड है। क्वेश्चन कहता है दैट अगर हम चाहते हैं कि फिक्स्ड रेजिस्टर के अक्रॉस 8 वोल्ट्स आए, फिक्स्ड रेजिस्टर के अक्रॉस 8 वोल्ट्स आए, बल्कि 8 की बजाय मैं थोड़ा सा यहां पे चेंज कर देता हूं, instead of 8 I'm going to use a volt 10 volts on इसमें भी, और इधर भी मैं चेंज कर रहा हूं कि we can get 10 volts। so ये कहता है कि 10 volts on, so 10 volts हासिल करने के लिए where I should place sliding contact in terms of length of the wire L, मुझे अपना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट किस जगह रखना चाहिए ताकि मेरे पास जो वोल्ट मीटर पर रीडिंग है वो 10 वोल्ट्स हो। जी अब्दुल्ला, अब आपकी बारी, आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, मैंने यही सवाल था। ठीक है। अच्छा, और साथ सर मैंने ये पूछना था कि जो फिक्स रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस में और जो एक्स पे रेजिस्टेंस है सर उसकी डबल है, तो जरूरी होगा कि जो एक्स पे रेजिस्टेंस होगी वो उससे डबल ही होगी? नहीं, ये तो एक एग्जांपल दी है ना, ये तो कोई भी वैल्यू हो सकती थी, और एक्चुअली में भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा वो डबल नहीं है।
मतलब हमें एक्चुअली में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एक ऐसे पॉइंट पे रखना होगा जिसका रेजिस्टेंस जो लेंथ है वो 200 ओम के इक्विवेलेंट ना बने। यही तो बात समझाने जा रहा हूं आपको। अच्छा, अब देखिएगा, ये बात समझाने लगा हूं साथ, अभी आपको समझ में आ जाएगी। मैं इससे जूम आउट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके सामने ये सर्किट रहे और उसके साथ मैं आपको समझा सकूं। ओके साथ, अब आपने जरा थोड़ा सा गौर से देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सेक्शन, और बाकी सब भी बेटे, ताकि आपको पता चले। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले आप लोगों को ये बात क्लियर है कि जो वायर है हमारे पास एक्स वाई पर, और ये जो 100 ओम रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्टेड है। सबको ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब आप याद करें कि जब हम कहते थे कि सीरीज में होते हैं, जब भी कोई भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो अब आप मुझे एक और पॉइंट बताइएगा प्लीज, जल्दी से देख के बताना है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है या फिर करंट डिवाइड होता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 100 ओम के अक्रॉस है, अगर मैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर देता हूं 24 में से, I can get the potential difference across the wire. So यहां पर हम ये लिखने लगे that VT in series, VT is equal to potential difference across wire plus potential difference across 100 ohm resistance. अब VT की वैल्यू मेरे पास है, it is 24. Potential difference across wire is unknown, and 100 ohm it's 10. That means that potential difference across wire comes out to be 14 volts. अब क्वेश्चन की जो डिमांड थी, मैं उसी डिमांड को देखते हुए ये वैल्यू कैलकुलेट की है। क्वेश्चन ने कहा था कि 100 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट्स है। इसका मतलब है कि अगर 100 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट्स होगा तो उस वक्त इसके अक्रॉस कितना आया होगा हमारे पास? 14 वोल्ट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मुझे बताओ कि सीरीज में करंट सेम रहता है या डिफरेंट होता है? सेम रहता है। सेम रहता है, शाबाश। तो अगर सीरीज में करंट सेम रहता है, कैन आई कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट बाय अप्लाइंग 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या है और 100 ओम का रेजिस्टेंस? तो मैं यहां पे करंट कैलकुलेट कर सकता हूं, इट्स 10 डिवाइडेड बाय 100. It means that right now it is 0.1 ampere. So हमारे पास 0.1 ampere करंट आ गया across 100 ohm, जो which is passing through 100 ohm. इतना ही करंट जो है वो वायर में से भी चलना चाहिए। तो अगर हम कह रहे हैं कि वायर में से भी यही करंट फ्लो कर रहा है, तो अब मेरे पास वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है और वायर में से फ्लो करने वाला करंट है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट वायर करंट थ्रू वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर। सो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है 114, ये हमारे पास है 0.1। सो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर आ सकता है। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या आ जाएगा? 140 ohms. 140। वेरी गुड। इसका मतलब है कि इस वक्त हमें वायर के ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस तरह से रखना है कि उसकी सिर्फ इतनी लेंथ कवर हो which is offering a resistance of 140 ohms. क्योंकि अगर मैं इस तरह से रख के ये लेंथ हासिल करूंगा तो फिर मेरे पास 140 ohms का रेजिस्टेंस आएगा जो सपोर्ट करेगा कि वायर के क्रॉस 14 वोल्ट्स का करंट हो, 14 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो
और करंट उसमें से 0.1 एम्पियर हो एंड एट द सेम टाइम जो रेजिस्टेंस है फिक्स रेजिस्टर उसके अक्रॉस 10 वोल्ट्स आ जाए। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं इसी के अंदर ही। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम यहां पर वायर की वो लेंथ निकालते हैं जो सपोर्ट करेगी कि वायर का रेजिस्टेंस 140 ओम्स हो। अब वो लेंथ निकालने के लिए मैं क्या मेथड यूज करूंगा? हमें एक बात पता है कि R is directly proportional to length. So can I write that R1 over L1 is equal to R2 over L2? मैं ये बात कर सकता हूं? यस सर। अच्छा, अब मुझे अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई तो मैं आपको ये बता देता हूं। आप लोग मैथ्स में करते हैं ना वेरिएशन में that y is directly proportional to x, तो आप सबसे पहले लिख देते हैं y is equal to kx। वेरी गुड। सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे लिख रहा हूं। अब मेरे पास वायर जब कंप्लीट लेंथ हम यूज करते हैं तो हमारे पास 200 ओम्स है। अब अगर मुझे 140 ओम्स चाहिए तो व्हाट लेंथ आई शुड यूज टू गेट 140 ओम्स? सो मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? L2 in this case is equal to 140 over 200 सर 0.7। So इसका मतलब है कि मुझे इस वक्त वायर को प्लेस करना चाहिए एक ऐसी लेंथ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कि I can cover up to 0.7 L of the wire. That means कि एक्चुअली मैं वायर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को किस पॉइंट पे रखूंगा? मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एक्चुअली में इस जगह पे अगर आपको दिखाऊं तो आई एम गोइंग टू प्लेस द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ओवर हियर। ये मैं आपके सामने यहां पे रख रहा हूं। मुझे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इन रियलिटी इस पॉइंट पे रखना चाहिए। अगर तो मैं न्यूमेरिकली लिखूंगा तो आई एम at 0.3 L ताकि मेरे पास जो वायर की लेंथ कवर हो जिसमें से करंट 0.7 L। लेकिन सर हमें बेटे हम इन टर्म्स ऑफ एल ही दे रहे हैं ना। एक्चुअल लेंथ उसको 0.7 जिससे करंट फ्लो करता है और इसके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और